Am I audible and visible? I don't know what's the issue. Yes, yes. Today my internet has some problems. Audible. Earlier, Yep. earlier you were not, but you're not visible. I'm not visible? Is it so? Am I not No, visible to yes, sir, now visible. Visible. visible? Okay. So let's start today's discussion, right? Now, basically today we are going to start with Chhattisgarh Land Revenue Code, right? And before I start my discussion, a few things you people should know about Chhattisgarh Land Revenue Code that is important for you to understand from exam point of view, right? And that this particular code is quite wide. It is having 250 plus sections. So we don't have to follow each and everything, right? We just have to follow the relevant part. Sir, Relevant part means, yes, so you told that before we start the act, we'll take up the doubts of the rent control. doubts of rent control. Okay. So may I take it after the class? Is it okay? No Because we are problem, no already late problem, for sir. the class. And sir, if Right. we like start any act, can we discuss like the weightage of that act? How many questions were Yep. asked? Yep. Like in So now, generally, how many are asked or how many were asked earlier? Like in rent control right. also, if you could guide. Right. So let me tell you, from Rent Control Act, there will be 3 to 4 questions. But last year from local law, they have asked a lot of questions. So last year, 7 questions were there from rent control out of 100. But this year, if they follows the previous pattern, not of the last year, then we may expect 3 to 4 questions from Rent Control Act. In the same way, we can expect 5 to 6 questions from Chhattisgarh Land Revenue Code, CGLRC. Right? Okay, sir. Okay, now, so basically this land revenue code, Chhattisgarh Land Revenue Code 1959, it focuses on one thing, that is land area, right? Land area which is agriculture, right? It is not applicable on non-agricultural lands because non-agricultural lands they are governed by various provision of law, including Chhattisgarh Land Control Act. So this act specifically deals with agricultural land. Now, what is agricultural? It is quite wide definition. It includes horticulture, it includes farming, it includes cultivation, it includes fish farming, numerous of things, right? So we are going to discuss in detail about that. But this act was published on 25th April 2016, right? And finally, it has also applied from 25th April 2016 in Chhattisgarh. Now, before we proceed ahead, as we always do, we have to understand the objective of this act, why this act has been framed. What was the need of this particular act, right? So this act received the assent of governor on 25th April 2016. Now, basically, this act consolidate, okay, and amend the laws relating to land revenue, right? And how to collect tax or revenue from the people who are agriculturists. How to collect the revenue from the people who are agriculturists, right? And it also deals with various dispute regarding land, right? And the liabilities incidental to those particular matters. So it also deals with the rights and liabilities of a Bhumi Swami. Bhumi Swami means the person who is owning a land, right? So it defines that part as now the statement of objective reason. There is at present different set of laws regarding revenue, agriculture, tenure, and other matters relating thereto in force in different regions of the state. Such a state of affair is obviously not desirable from the point of view of the efficient revenue administration, and it is necessary to have a uniform legislation on the subject for the whole of the state. So there was a need of comprehensive and universal law, which is applicable on the whole territory of Chhattisgarh. So finally, this act has been designed. This act
is having a certain object which is to be achieved. That is generally based on the existing law in force, the subject of which various region. So basically, this particular act, what it does in various parts of Chhattisgarh, there were various category of laws. What it did, that it has combined all the laws together and prepared a uniform law for the whole territory of Chhattisgarh. Now, it received the assent of President of India on 15/9/1959, published in Chhattisgarh Official Gazette. We have already discussed under CGLRC that whatever laws were applicable on Madhya Pradesh after the separation of Chhattisgarh, they were applicable on Chhattisgarh also from the same date on which they have been passed in Madhya Pradesh. So it is like finally received the assent of President on 15th of September 1959, and it has finally published in the Official Gazette of Chhattisgarh on 15/9/1959. Right? This act consolidate and amend the law relating to land revenue, powers of the revenue officer. So it defines three major things. First, laws relating to land revenue. Second, powers of revenue officer. Third, rights and liabilities of the landholders. Bhuswami. What is going to be the rights and liabilities of landholders? Okay, from the state government, right? It also defines agricultural tenure and other matters relating to rent and liability incidental thereto in Chhattisgarh, right? So this act is having, if we will concisely talk about, so it is having three objects. First, to decide the powers of revenue officer. Second, to decide the rights and liability of holder of land. Third, to consolidate and amend all the laws relating to land revenue which were prevailing in various areas of Chhattisgarh. Is it clear? Yes or no? Object part is clear? Yes, sir. Perfect. Yes, sir. Now coming to short title, extent and commencement. This act may be called Chhattisgarh Land Revenue Code 1959. It extends to whole Chhattisgarh, but nothing contained in this code except the provision relating to liability of land for the payment of land revenue, the assess of land revenue with reference to the use of land, realization of land revenue, and all provisions ancillary thereto shall apply to such area as may be from time to time deconstituted or reserved or protected under Forest Act, Indian Forest Act 1927. So basically, the application of this act is below Indian Forest Act 1927. So whatever land is falling within Indian Forest Act 1927, on that particular land, which is not an agricultural land, on that particular land, this Chhattisgarh Land Revenue Code will not apply. Right? It can be applicable only with regard to use of such area with one or more purpose specified in section 59. So this act can be applied, okay, whenever it is coming to the question of using of forest land. But if you will talk about कि forest land का कोई भूमि स्वामी होगा, the answer is no. Forest land को आप लीज कर सकते हो, the answer is no. Forest land को आप बिना state government की permission के exploit कर सकते हो, the answer is no. वहां पे आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हो, कल्टीवेशन कर सकते हो, द आंसर इज नो. व्हाई? बिकॉज दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्टेट. स्टेट मींस द गवर्नमेंट, राइट? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर जो एरिया है उस पे ये कोड अप्लाई नहीं हो, एक्सेप्ट द एरिया जिसको खुद स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट रेंट पे देना चाहती है, राइट? वहां पे एक्ट अप्लाई होगा, अदरवाइज इन जनरल फॉरेस्ट लैंड पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा. ठीक है? और गवर्नमेंट भी जैसे अगर फॉरेस्ट लैंड को लीज पे दे देती है तो किस लिए? फॉर कलेक्शन ऑफ हनी या फॉर कलेक्शन ऑफ वुड्स. ठीक है? इसलिए देती है. वहां पे वो आपको कल्टीवेशन करने की परमिशन नहीं देंगे कि आप पूरे पेड़ वेड़ काट के और यहाँ पे फसल उगा लो. That shall not be allowed. Right? This act shall come into force as such date as the state government may by notification upon. This act shall be applicable on the date, okay, on which the state government appoints it. Right? Now,
Coming to the definition clause, very important, right? Section 2A, it defines abadi, right? What is abadi? Abadi means the area reserved from time to time in a village, in a non-urban area for the resident of the inhabitant thereto, or for the purpose ancillary thereto, and other local equivalent of this expression such as village site or gosthan shall also be construed accordingly. Now यहाँ पे बहुत सिंपल सी चीज, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिन लोगों ने सीजी रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा है वहां पे भी हमने आबादी की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेम डेफिनेशन इज एप्लीकेबल हियर, एग्जैक्टली सेम डेफिनेशन। कोई भी एरिया जो विलेज का एरिया है या नॉन अर्बन एरिया है जहां पे लोग रह रहे हैं, ठीक है, या फिर लोग रहने से रिलेटेड एक्टिविटी कर रहे हैं, जैसे कहीं पे लोगों ने अपना घर के बाहर वॉशरूम बनाया, दैट शैल आल्सो बी कंसीडर्ड आबादी, ठीक है। अगर घर के बाहर किसी ने छोटी सी दुकान खोल रखी तो दैट दुकान वाला एरिया शैल आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ आबादी। इट शैल आल्सो इंक्लूड विलेज साइट एंड गोस्थान। गोस्थान मींस जहां पे यूजुअली द पीपल कीप देयर लिविंग कैटल्स, लाइक जो लिविंग स्टॉक होता है ना, लाइव स्टॉक होता है, कैटल्स एनिमल्स उनको रखते हैं जिस जगह पे, वो भी आबादी में आएगा, वो एग्रीकल्चर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। इज इट क्लियर? यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट। नाउ एग्रीकल्चर इंक्लूड्स, एग्रीकल्चर में कई सारी चीजें इंक्लूड होती है, राइट? So we have to understand that agriculture includes 5 things. First, the raising of annual or periodic crops including betel leaves, water nuts, singhara and garden produce. So any kind of agriculture or annual or periodical crop, जैसे कि any crop, wheat, barley, corn, ठीक है, and some of the crops are annual, like they are not seasonal crops, they are annual, उनके कल्टीवेशन में पूरे एक साल का टाइम लगता है, तो they shall also fall in the category of agriculture, ठीक है। It shall expressly, they have stated, it shall include betel nuts, water chestnuts, that is singhara and palm, and garden products, ठीक है। It shall include हॉर्टिकल्चर, ठीक है। हॉर्टिकल्चर को हिंदी में बोलते हैं बेटा उद्यान कृषि। क्या बोलते हैं? उद्यान कृषि, मतलब जो आप कन्वेंशनली गार्डनिंग कर रहे हैं, राइट? आप उसमें सनफ्लावर उगा रहे हैं, रोज उगा रहे हैं, लोटस उगा रहे हैं, मैरीगोल्ड उगा रहे हैं, राइट? तो दैट शैल आल्सो फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एग्रीकल्चर। बट रिमेंबर वन थिंग, इट शुड बी, ऐसा नहीं होगा कि आप अपने गार्डन में आपने 20 पौधे लगाए, ठीक है, और उनसे आप अपने रेगुलर फूल वगैरह ले रहे हो, तो उनपे ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। इट अप्लाइज ऑन अ लार्ज स्केल कलेक्शन, राइट? सो हॉर्टिकल्चर मींस व्हेन यू आर डूइंग इट फॉर कमर्शियल पर्पस। कमर्शियल पर्पस के लिए आप 1 हेक्टेयर एरिया में अगर फूल उगा रहे हैं, दैट इज एग्रीकल्चर। द प्लांटिंग एंड अपकीपिंग ऑफ ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स मींस फलों के बाग, ठीक है, फलों के बागान बना रहे हैं, अमरूद के या चाय के या सेब के या केले के या अंगूर के, आपने बड़े बड़े बागान बना रखे हैं। याद रखो, 1 या 2 पेड़ नहीं, दे आर स्टेटिंग ऑर्चिड्स। ऑर्चिड मींस बागान, 1 या 2 पेड़ लगाने से वो एग्रीकल्चर में फॉल नहीं करे। द रिजर्विंग ऑफ एनी लैंड फॉर फोडर, गेजिंग और थ्रेशिंग ग्रास, ठीक है, कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी लैंड जिसको आप किसके लिए, फोडर मतलब चारा, ठीक है, एनी लैंड रिजर्व फॉर ग्रोइंग फोडर और फॉर गेजिंग और फॉर थैचिंग ग्रास, ठीक है, कोई भी एरिया है जिसमें आप चारा उगा रहे हो जानवरों के लिए, उसको बेच रहे हो, या छप्पर की घास, ठीक है। छप्पर की घास क्या होती है बेटा? हैव यू पीपल सीन जो कच्चे मकान होते हैं, उनके ऊपर खपरेल होता है मिट्टी का, उसके अंदर, उसके अंदर एक स्टफिंग की जाती है, ठीक है, उस स्टफिंग को हम क्या बोलते हैं? गेजिंग ग्रास, सूखी हुई ड्राइड ग्रास, इसको येलो गेजिंग कलर ग्रास। की जो होती है वो, किस कलर की बेटा? येलो, हाँ, येलो येलोइश कलर की, वो। राइट, राइट, ठीक है। और या फिर हैचिंग ग्रास, ठीक है,
Thatching grass is the grass which is conventionally grown for animal eating. वहां पे उस घास को उगा के जानवरों को छोड़ दिया जाता है, इसको आप खाओ. That shall also include in agriculture. The use of any land for poultry, fishery or animal husbandry in the area situated more than 5 kilometer away from the peripheral of urban area. किसी भी अर्बन एरिया से 5 किलोमीटर या उससे ज्यादा डिस्टेंस पे स्टैब्लिश्ड कोई भी पोल्ट्री, फिशरी या एनिमल हस्बेंड्री, कोई भी पोल्ट्री फार्म बनाओ, ठीक है, या आपने फिशरी बना रखी है जिसमें आप पॉन्ड में मछलियां के बीज लाते हो, मछलियों के बीज मतलब छोटी मछलियां लाते हो, उनको ग्रो करते हो और कमर्शियल पर्पज से सेल आउट करते हो, ठीक है, तो दैट शैल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर, राइट. अब देखो एग्रीकल्चर में 5 चीजें, कौन कौन सी 5 चीजें हैं? पहला, ग्रोइंग ऑफ एनी पीरियोडिक और एनुअल क्रॉप, एग्रीकल्चर. हॉर्टिकल्चर, orchards, fodder, gazing or thatching of grass, using of any land for poultry, fisheries or animal husbandry except the peripheral of 5 kilometer from the urban area. Is it clear? एग्रीकल्चर का डेफिनेशन इज क्लियर. कहां पे डिफाइंड है? 2B में. 2B में एग्रीकल्चर का डेफिनेशन. नाउ नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल ईयर. व्हाट इज एग्रीकल्चरल ईयर? इट मींस, ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ वालों का बहुत फेवरेट है, पता नहीं क्यों, बहुत इजी क्वेश्चन है तो बहुत पूछते. इट मींस द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई. याद रख, फर्स्ट डे ऑफ जुलाई से एग्रीकल्चरल ईयर कमेंस होता है, or on such date as notified by the state government. Board means Board of Revenue constituted under section 3. Board means Board of Revenue constituted under section 3. ठीक है. Next, bona fide agriculturist. Bona fide agriculturist means a person who cultivates land personally or who may reasonably be expected to cultivate personally. ठीक है, वो इंसान जो अपनी जमीन पे खुद खेती करता है, लाइक ही इज द लैंड ओनर, और वो लैंड ओनर अपनी जमीन पे कल्टीवेशन करता है, ठीक है, तो दैट पर्सन इज बोनाफाइड एग्रीकल्चरिस्ट. या एक ऐसा इंसान जिसके पास जमीन है और वहां पे वो क्रॉप्स को ग्रो कर सकता है लेकिन वो कर नहीं, इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू कल्टीवेट पर्सनली, लेकिन वो ग्रो नहीं करता, ठीक है, दैट शैल बी बोनाफाइड एग्रीकल्चर. Cooperative society means a society registered under any law for the time being in force as cooperative society. ठीक है. नेक्स्ट, ये डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है. 2F, गवर्नमेंट फॉरेस्ट. गवर्नमेंट फॉरेस्ट मींस द एरिया रिजर्व्ड अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, एरिया रिजर्व्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एक्ट, ठीक है. तो 2G में है गवर्नमेंट, ठीक है. 2H में है गवर्नमेंट लेसी. नाउ we know as per transfer of property act who is the lessor and lessee. The person who gives the property on lease is lessor and the person to whom the property is given on lease is lessee. So government lessee means a person holding a land from the state government under section 181. Means if a person is taking a property on lease from government, he shall be a government lessee. Is it clear? Yes or no? Yes, sir. Perfect. Heading to the next definition, that is holding. What is holding? Just a second. Holding means a parcel of land, ठीक है, separately assessed to land revenue and held under one tenure, ठीक है. होल्डिंग मींस अ पर्टिकुलर एरिया जो कि एक स्पेसिफिक ईयर में ही, एक स्पेसिफिक ईयर में ही एज अ एग्रीकल्चरल लैंड कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, दैट इज होल्डिंग. एंड इन रेफरेंस टू लैंड
held by tenant as a parcel of land from being भूमि स्वामी under one lease or a set of lease। तो होल्डिंग का मतलब एक इंसान जो एक जमीन को होल्ड कर रहा है जो कि एग्रीकल्चरल लैंड है, लेकिन वो इंसान उस जमीन का जो भूमि स्वामी है वो नहीं है, ठीक है, या अगर है भी तो वो जमीन टेम्परेरी 1 साल के लिए ही फॉरेस्ट सॉरी आपका एग्रीकल्चरल लैंड की कैटेगरी में आई, ठीक है। एक लैंड जिसको आप लैंड रेवेन्यू के लिए असेस कर रहे हो फॉर अ पर्टिकुलर टेन्यूर, ठीक है। या फिर होल्डिंग का मतलब क्या होता है? होल्डिंग का मतलब होता है धारक या धारण करना। क्या धारण कर रहा है? जमीन धारण कर रहा है। कौन धारण कर रहा है? कोई आदमी धारण कर रहा है, ठीक है। तो अगर किसी को लीज के थ्रू, जैसे मेरी जमीन है, मैंने लीज के थ्रू फॉर एग्जांपल मालवी को लीज पे दे दी अपनी जमीन, राइट, तो यहां पे मालवी इज अ होल्डिंग, या मालवी ने उसको फर्दर सबलीज कर दिया, मैंने मालवी को लीज पे किया, उसने सबलीज कर दिया तन्वी, तो तन्वी शैल बी कंसिडर्ड होल्ड। यहां पे होल्डिंग फिर मालवी नहीं रहेगी क्योंकि मालवी ने उस जमीन को सबलीज कर दिया। यहां पे लिखा है ना अंडर वन लीज और सेट ऑफ लीज, जिसके हाथ में जमीन है, जो भूमि स्वामी से जमीन को लीज पे ले रहा है, ठीक है, दैट पर्सन शैल बी कंसिडर्ड एज होल्डिंग, ठीक है। तो वो इंसान जो एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में एक जमीन को खुद, अपनी जमीन को खुद धारण कर रहा है 1 साल के लिए, या फिर रेवेन्यू पर्पस को एसेस करने के लिए वो दूसरे इंसान को जमीन को दे देता है ऑन लीज, तो जो इंसान, जिस इंसान को दिया है दैट पर्सन शैल बी कंसिडर्ड होल्डिंग। इज इट क्लियर? यस यस और नो? Yes, sir. ना। सर, इसमें जिस इंसान को दिया, सबलेट किया, वो होल्डिंग कहलाएगा। हाँ सबलीज जिसको किया, राइट? हाँ हाँ, जिसके हाथ में ओके, जमीन है वो होल्डिंग है, ओके सर। सिंपल। इससे फर्क नहीं पड़ता लीज किया नहीं किया, जिसके हाथ में जमीन है वो होल्डिंग। क्लियर? यस सर। Now, coming to improvement. Improvement with reference to any holding, any work which adds materially to the value of the holding which is suitable thereto and consistent for the purpose for which it is held, and which, if not executed on holding, is either executed directly for the benefit or after execution made directly beneficial to it and subject to the foregoing provision, includes। अब देखो, ये चीज हमें पता है इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में वैल्यू एडिशन करना। मैं बोलूं आपका स्कोर इंप्रूव हो गया, मतलब आपके स्कोर में कुछ एडिशन हो, ठीक है। तो इंप्रूवमेंट मींस किसी भी चीज में एडिशन करना, ठीक है। अब एडिशन किस तरीके से हो सकता है? इट कैन बी by construction of wells, tanks, water channel, embankment and other waters of storage, right? Just a second. Now, हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, इंप्रूवमेंट मतलब आपने किसी भी जमीन पे कुछ ऐसा डेवलपमेंट किया, ठीक है, जिससे उस जमीन की जो वैल्यू है वो बढ़ गई। वो डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? आपने वाटर टैंक बना दिया, वेल बना दिया, वाटर चैनल बना दिया, एम्बांकमेंट बना दिया, या कोई और वर्क ऑफ स्टोरेज, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए आपने कैनाल बना दिया, तो दैट इज इंप्रूवमेंट, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क ऑफ ड्रेनेज ऑफ लैंड एंड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड फ्रॉम फ्लड और अदर इरोजन और अदर डैमेज फ्रॉम वाटर। आपने जमीन के अंदर एक ड्रेनेज सिस्टम बना दिया ताकि आपकी एग्रीकल्चरल लैंड पे ज्यादा पानी ना भरे, ठीक है। या फिर आपने किसी भी तरीके से अपनी जमीन को फ्लड से प्रोटेक्ट करने के लिए फेंसिंग, वायरिंग कर, ठीक है, बड़ी सी वॉल बना दी कि भाई पड़ोस के खेत में पानी भरे तो आपके खेत में ना आ पाए, टू स्टॉप दैट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर आप कोई परमानेंट स्ट्रक्चर बना रहे हो वही इंप्रूवमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि पड़ोस के खेत में पानी आ रहा है और उससे आपके खेत में आ रहा है तो आपने टेम्परेरी कुछ रेत की बोरियां भर के वहां डाल दी, वो इंप्रूवमेंट नहीं है, बिकॉज दैट्स अ टेम्परेरी अरेंजमेंट, ठीक है। द अरेंजमेंट शुड बी परमानेंट टू फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। द नेक्स्ट, द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है, एंड द प्लांटिंग ऑफ
trees and reclaiming, clearing, erosion, leveling और terracing of land. किसी जगह पे पौधे लगाना, ठीक है, मेड़ पे लोग पौधे लगा देते हैं, या किसी भी जमीन को समतल करना, ऊंचाई पे एलिवेट करना, लेविटेट करना मिट्टी डाल के, ये सब इंप्रूवमेंट है, ठीक है। कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना एग्रीकल्चरल लैंड पे। कई सारे लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड पे, चूंकि वो किसान है, खेत पे जाते हैं, तो उन्होंने वहीं पे एक छोटा सा कमरा बना दिया, तो कमरे बना दी, छोटा सा किचन बना दिया, तो दैट इज इंप्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन याद रखना कि ये डेवलपमेंट कहां पे होना चाहिए, ठीक है, विच शुड बी एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट आबादी और अर्बन एरिया, मतलब विलेज या अर्बन एरिया, आबादी मतलब विलेज, तो विलेज या अर्बन एरिया के अलावा, आबादी और अर्बन एरिया के अलावा कहीं पे इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ठीक है। और ये किस लिए है, फॉर द कन्वीनियंस और प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द ऑक्यूपेशन ऑफ द होल्डिंग, उस खेती को अच्छे से करने के लिए, उस किसान के लिए जो इसके पास वो जमीन, उसके लिए जरूरी है कि वो एक मकान बना ले, ताकि रात में जब खेत में पानी लगे तो वो वहीं पे सो जाए, एक बैग डाल लिया उसने, तो ये सब क्या हो गया, इंप्रूवमेंट, ठीक है। द रिन्यूअल और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एनी ऑफ द फॉरगोइंग वर्क, पहले से वाटर चैनल था, टूट गया, आपने उसको रिकंस्ट्रक्ट कर दिया, या पूरा हटा के दोबारा से रिन्यू कर दिया, नया फ्रेश वाटर चैनल बना दिया, या पुराना एक कमरा बना था वो टूट गया था, उसको गिरवा के दोबारा उसी को इम्प्रूव करके एक कमरा बनवा दिया, तो दैट इज कंसिडर्ड इम्प्रूवमेंट, ठीक है। बट इट शैल नॉट इंक्लूड, क्या इंक्लूड नहीं होगा, टेम्परेरी वेल्स, टेम्परेरी कुएं खोद दिए, such as water channels, embankment, leveling, enclosure or other works of petty alteration or repair to such work as commonly made by cultivator of the locality in the ordinary course of agriculture. जो मैंने आपको बताया था ना, खेत में ज्यादा पानी आ रहा है, रेत की बोरियां डाल दी टेम्परेरी पानी को रोकने के लिए, या टेम्परेरी आपने देखा होगा उस पे इंस्टाग्राम रील्स पे ऐसी वीडियोस काफी देखने को मिल जाती हैं कि एक जगह से पानी बह रहा है, आदमी ने कट कर दिया, उस कैनाल में छोटा सा कट डाल दिया ताकि उसकी जमीन पे पानी आने लगे, दैट इज टेम्परेरी, तो इंप्रूवमेंट में फॉल नहीं होगा, ठीक है। और एनी वर्क विच इज सब्सटेंशियली डिमिनिशेस द वैल्यू ऑफ और द लैंड, कोई भी ऐसा कंस्ट्रक्शन करना जो कि जमीन की कीमत को कम कर दे, वैल्यू को डिमिनिश कर दे, वो भी इंप्रूवमेंट में नहीं आए। इंप्रूवमेंट का मतलब तो अच्छे पॉजिटिव सेंस में होता है ना, ऊपर उठाना, ना कि नेगेटिव सेंस में कम करना। अगर आप जमीन की कीमत को कम कर रहे हो, दैट इज नॉट इंप्रूवमेंट, उसको हम इंप्रूवमेंट नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर, यस और नो? Yes, sir. नाउ explanation, a work which benefits several holding may be deemed to be an improvement with respect to each of such holding, ठीक है। अब मान लो आपने एक वेल बनाया, ठीक है, और इस वेल से 3 खेत वाले लोग हैं जो पानी लेते हैं, परमानेंट वेल का कंस्ट्रक्शन किया, मेरी हैंडराइटिंग मतलब मेरी ड्राइंग बहुत पुअर है, बट ऐसे मान लो कि एक वेल है, ठीक है, और इस वेल से 3 पार्टीज ए बी और सी पानी लेते हैं, तो all 3 of it shall be assumed that this improvement was made by all 3 of them. Now land means section 2k, land means any portion of earth surface whether or not under water, and where the land is referred to in this code, it shall be deemed to include all the things attached to or permanently fastened to anything attached to such land. Land का मतलब क्या है? Land means the land whether above the water or under the water, or anything permanently attached to land, or anything which is fastened to the land which is permanently attached to land. ये आपको दिख रहा है ग्रीन स्क्रीन, इज इट विजिबल? यस, एनीवन? Yes, sir. ये इमूवेबल है, ये लैंड है, ठीक है। ये लैंड की कैटेगरी में कैसे आ जाएगा, बिकॉज ये ना परमानेंटली एंटेंगल्ड है, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं आपको दिखाता हूं। इफ यू पीपल कैन सी, ये यहाँ पे हुकअप किया गया, ये निकल नहीं सकता, ये दीवार से अटैच है, और दीवार किससे अटैच है? लैंड से अटैच, तो दिस इज लैंड,
अगर यही मान लो ये खेत होता, खेत में मैंने ये कमरा बनाया होता रात भर रुकने के लिए, और कमरे में मैंने पंखा लगा रखा। अब पंखा डायरेक्टली लैंड से अटैच नहीं, बट इट इज अटैच्ड टू द fastened to the structure which is permanently attached to, तो ये भी लैंड की कैटेगरी में आ जाए। क्लियर है? Yes, sir. Now, what is section 2L? Landless person. Who is the landless person? ठीक है, it means a person who is a bona fide agriculture and who, whether individually or jointly with other members of his family, hold no land or less than the area which may be prescribed in this behalf. लैंडलेस का मतलब एक इंसान है जो खेती तो कर रहा है लेकिन उसके पास खुद के खेत नहीं, वो दूसरों के खेत को लीज पे लेके खेती कर रहा है। ठीक है, जैसे हमारे घर पे खेती है, ठीक है, लेकिन मैं खुद खेती नहीं करता, गांव में नहीं जाता, ठीक है, तो हमारी लैंड पे कोई और खेती करता, तो दैट पर्सन इज अ लैंड। अगर उसके पास खुद के पास और उसके फैमिली मेंबर्स के पास कोई जमीन नहीं है लेकिन वो खेती से ही अपनी अर्निंग को डेवलप किए हुए, दैट पर्सन इज लैंड। क्लियर? यस। Yes, sir. And for the purpose of family it shall include his parents and spouse, पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्पाउस। अगर उसकी वाइफ के पास, हस्बैंड के पास या बच्चों के पास और माँ बाप के पास कोई जमीन नहीं है फिर भी वो एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड है तो वो लैंडलेस पर्सन। ठीक है, दैट मीन्स लैंडलैंड, कोई भी फैमिली मेंबर्स के पास नहीं है लैंड। हाँ राइट एग्जैक्टली। ओके। ठीक है, अगर किसी के भी पास है तो फिर आप अपने आप को लैंडलेस क्लेम नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, अभी आई टेल यू परफेक्ट एग्जांपल। हमारे घर में ही मेरी मम्मी के नाम पे है एग्रीकल्चरल लैंड, फादर के नाम पे, मदर के नाम पे भी है। मदर तो खेत में जाती नहीं है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन फादर तो जाते हैं ना, तो वो क्या हो गए, वो अपने आप को लैंडलेस क्लेम नहीं कर सकते because he is doing cultivation on his wife's property. सर लैंड क्लियर? तो सर उसको बोल रहे हैं ना यहाँ पे जिसके पास या तो खुद लैंड नहीं है या तो जॉइंटली ओन नहीं कर रहा है। अगर वो मदर के वो लैंड है उसमें काम करेंगे तो वो लैंड उनकी थोड़ी हो जाएगी। just a second, I'll just repeat it for you. No land or less than the land either individually or jointly with other members of his family hold no land or land less than the area which may be prescribed in this behalf. तो जैसे मेरे फादर हैं, उनके खुद के पास 5 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक है, मेरी मदर के पास 60 एकड़ ऑफ लैंड है, ठीक है। अब मेरे फादर के पास ये 5 एकड़ है तो वो अपने आप को लैंडलेस क्लेम नहीं कर सकते, वो भले ही मदर की प्रॉपर्टी पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं लेकिन वो अपने आप को लैंडलेस क्लेम नहीं कर सकते। बट लेट्स अज्यूम कि मेरे फादर के पास ये 5 एकड़ भी नहीं, ये जीरो लैंड, ठीक है, बट वो मेरी मदर की लैंड पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हैं, तब मेरे फादर अपने आप को लैंडलेस क्लेम कर सकते, ठीक है। या फिर मेरे फादर और मदर की ये ज्वाइंट प्रॉपर्टी, फादर प्लस मदर की ये ज्वाइंट है 60 एकड़, ठीक है, ज्वाइंट अकाउंट से खरीदी है उन्होंने, तो भी वो अपने आप को लैंडलेस क्लेम नहीं कर सकते। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। Okay. Anyone else having doubt in it? Clear to everyone? Yes, sir. Clear. Now, next, land record means the record maintained under the provision of this code. Okay? Legal practitioner means anyone entitled to practice in any court in Chhattisgarh under Advocates Act 1961. Simple है, ये definition simple है. Do I need to explain it to you people? Yes? No, sir. नो सर। Perfect. Now, Mango Grove, ये 2O में है, याद रखना, मैंगो से 2O को याद रखना। ये पता नहीं क्यों इन्हें मैंगो ग्रोव से बहुत प्यार है छत्तीसगढ़ वालों, ठीक है। मैंगो ग्रोव मींस मैंगो ट्रीज प्लांटेड इन सच नंबर
that they preclude or when full grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for any purpose other than planting of trees. आम के बागान, आम के उद्यान, आम के उद्यानों का मतलब क्या है? जब आप इतनी पास पास पौधे लगाते हो कि उस जगह पे पौधे उगाने, आम के पौधे उगाने के अलावा, या तो वो अभी छोटे पौधे हैं तो बड़े होने पे वो पौधे जब फुल ग्रोन ट्री बन जाएंगे तो वहां कोई और काम नहीं हो सकता। आप घर नहीं बना सकते जब तक वो आम के पेड़ लगे रहेंगे, या आप कोई और दुकान नहीं खोल सकते, किसी और पर्पज से उसको यूज नहीं कर सकते। इतने पास पास लगाए हैं आप मैंगो ट्रीज, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैंगो ग्रोव। क्लियर है? मतलब जैसे ये लैंड है फॉर एग्जाम्पल, लेट्स अज्यूम ये लैंड है, ठीक है, ये 1 एकड़ की लैंड है। अब मान लो एक आदमी ने यहां 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 और यहां 5 जगह पे आम के पौधे लगाए, तो ये मैंगो ग्रोव में नहीं आएगा, बट आप उसने यहां ऐसे लगाए। अब किसी और पर्पज से आप इस लैंड को यूज ही नहीं कर पाओगे, तो ये क्या हो गया? मैंगो ग्रोव। भले ही ये पौधे अभी छोटे हैं तो अभी ये दूर दूर दिख रहे हैं, लेकिन बड़े होने के बाद ये जगह नहीं छोड़ेंगे टू ग्रो एनीथिंग एल्स और टू यूज दैट लैंड फॉर एनी अदर पर्पस, तो ये क्या हो गया? मैंगो ग्रोव। ठीक है। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू मीन्स द वैल्यू असेस्ड बाय कलेक्टर अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस प्रोवाइडेड अंडर छत्तीसगढ़ बाजार मूल्य मुद्रा दर्शक सिद्धांतों का ब्यायजन तथा उनका पुनरीक्षण नियम 2000। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्कल रेट। ठीक है, आपके एरिया में आपने ये टर्म सुना होगा कि हमारे यहाँ पे इतना सर्कल रेट चल रहा है, एग्रीकल्चरल लैंड इतने रुपए हेक्टेयर है, या इतने रुपए एकड़ है, या इतने रुपए बीघा है, जो भी चलता है, राइट। तो वो मार्केट वैल्यू कौन असेस करता है? कलेक्टर, एंड इट इज सब्जेक्ट टू रिन्यूअल। ठीक है, टाइम टू टाइम उसको रिन्यू करता है। ठीक है, हर 5 साल में, 7 साल में, 10 साल में उसको रिन्यू करता है, क्योंकि वैल्यू चेंज हो जाती है एग्रीकल्चरल लैंड की। ठीक है, नेक्स्ट 2OB, अर्बन लैंड मींस and opted for the use except agriculture in the master plan development policy in urban areas। अर्बन एरियाज में कोई भी लैंड जिसको एग्रीकल्चरल पर्पस के अलावा किसी भी और पर्पस के लिए, बिल्डिंग के लिए, फैक्ट्रीज लगाने के लिए, इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, गोडाउन्स वेयर हाउस बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, वो सब अर्बन लैंड होगी। किसमें? गवर्नमेंट के मास्टर प्लान या डेवलपमेंट पॉलिसी में। कई बार आपने सुना होगा कि ये जो खेत था ना, ये पहले एग्रीकल्चरल था, फिर गवर्नमेंट ने ये जमीन एक्वायर कर और यहाँ पे एक फैक्ट्री लगा दी, तो अब ये फैक्ट्री लग गई, तो अब ये फैक्ट्री एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं, राइट, पहले वो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी। ठीक है ना, नेक्स्ट ऑर्चर्ड, ऑर्चर्ड या बाग। ठीक है, ऑर्चर्ड का मतलब क्या होता है? ऑर्चर्ड मीन्स fruits planted in such number that they may preclude or when fully grown are likely to preclude the land on which they stand or any major portion thereof from being used primarily for any other purpose except planting the tree। सिंपल, जो मैंगो ग्रोव की डेफिनेशन थी, इसमें ऑर्चिड में भी सेम है, बस पौधे हटा दो, मतलब आम के पौधे की जगह पे पौधा वर्ड यूज। ठीक है, किसी भी और फल का पौधा है, जामुन का, अमरूद का, केले का, सेब का, अनार का, तो वो क्या हो गया? ऑर्चर्ड। क्लियर है? यस। Yes, sir. नेक्स्ट 2Q, plot number। plot number means a portion of land in urban area formed into or recognized as a plot number under section 93 in respect of which the area and the land revenue payable are separately entered in the prescribed record under an indicative number and includes any portion of land entered into previous record under an indicative number known as खसरा और सर्वे नंबर। ठीक है, अब देखो खसरा क्या होता है।
खसरा मतलब एक लैंड है, इसको एक स्पेसिफिक नंबर मिलता है, ठीक है, सर्वे नंबर जिसको। फिर एक और नंबर आपको मिलता है जिस नंबर को एंटर करके आप इसको टैक्स पे करते हो एनुअली, ठीक है, जो रेवेन्यू पे करते हो ना इस लैंड, ठीक है। तो कंबाइनिंग दीज टू नंबर्स टुगेदर विद रिस्पेक्ट टू दिस लैंड इज कॉल्ड खसरा। खसरा इज अ टर्म यूज्ड इन यूपी, एमपी एंड छत्तीसगढ़ एंड राजस्थान कॉमन, ठीक है। तो खसरा का मतलब क्या होता है, दैट सर्वे नंबर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बड़ी मस्त चीज दिखाऊंगा। My screen is visible to you people, yes? Yes, sir. Yes, sir. Now, you people can see something. खसरा देखें, ये है खसरा, ठीक है। एग्जैक्टली दिस इज यूनिक आईडी, ठीक है, ये सर्वे नंबर है। इस आईडी से, यूनिक आईडी से आप टैक्स पे करते हो। 1 हेक्टेयर की ये लैंड है, इसका ओनर है कोई कन्हई पुत्र हरपे, जाति जाटव, पता कुडीला, भांडेर, मध्य प्रदेश, ठीक है। यह जमीन सिंचित है, विक्रय से प्रतिबंधित है। विक्रय से प्रतिबंधित है मतलब इट कैन नॉट बी सोल्ड, मतलब इस पे कोई लोन वगैरह इशू। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। So this is what we call khasra. I hope this thing is clear to all of you. What is khasra? खसरा में basically दो चीजें होती है, सर्वे नंबर एंड यूनिक आईडी, ठीक है। यूनिक आईडी जिससे आप टैक्स पे करोगे, ठीक है, एंड अब प्लॉट नंबर, ठीक है, जो कि उस लैंड की एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बना, 17 ब्रैकेट 2 लिखा था। Is it clear? Now, proceeding next. Recognized agent with reference to a party proceeding under this code means any person authorized under the power of attorney by such party to make appearance and applications or to do act on behalf of such person in such proceeding. Power of attorney, ठीक है, अगर मैं आपको दे दूं तो आप मेरे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट बन जाओ। आप मेरे बिहाफ पे अगर कोई भी टैक्स भरना है या केस फाइल करना है या मेरी जमीन पे किसी ने कब्जा कर लिया, तो आप रिकॉग्नाइज्ड एजेंट की तरह मेरे बिहाफ पे एक्ट कर सकते, ठीक है। सेकेंडली, कोई भी पर्सन जिसको आप इन राइटिंग ऑथराइज करते हो टू मेक अपीयरेंस इन सच प्रोसीडिंग, जो लॉयर होता है वो भी आपका रिकॉग्नाइज्ड एजेंट होता है। योर प्लीडर इज आल्सो रिकॉग्नाइज्ड एजेंट। जब आप वकालतनामा साइन करते हो ना, by which you gives the consent that you want this particular lawyer to defend your case, right? So this is what we call recognized agent. Now, is it clear? यहाँ तक की चीजें clear है? Yes, sir. Okay. So what we will do, we'll stop here for the day, right? And tomorrow we'll cover it up, and I'll take MCQ of today and tomorrow's class together. Is it fine? Yes, sir. So tomorrow class Yes, sir. will be, sir, what time? At the same time, 8:15? No, 8. Today Okay, I okay. have made some delay No because problem. I have got some. Yeah.
And Malvi, I'll take up your doubts tomorrow only No at the beginning problem, of sir. the No problem. No problem. Perfect. So we'll stop here for now. Thank you, people. Stay happy, stay healthy, stay blessed. See you in the next session. See you. Thank you. No.